is the Karak for second house? Jupiter. Jupiter. And who is the Lord? Venus. 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 So second house has got two planets, both of opposite nature, right? दोनों बिल्कुल अपोजिट है, दोनों पक्के शत्रु हैं. अच्छा, और काल पुरुष का चार्ट के अंदर वीनस इज अ नेचुरल मारक, राइट? Yes, 2-7 का हो गया ना लॉर्ड. सेवंथ का लॉर्ड है. करेक्ट. ओके. एज वेल एज इट इज धन कारक, व्यापार कारक. सेवंथ हाउस इज हाउस ऑफ बिजनेस. Yes. And Jupiter is Karka for 5 houses other than second house, right? Yes. So then second house becomes very important for you. Because if Venus is Lakshmi, second house will decide how is your wealth going to be. And Yes. if Jupiter is a Karka for family, it is a Karka for wealth, it is a Karka for Bhagya, Karma, then second house becomes very important because these two planets are the general ruler for this house. Okay. So इसीलिए ये जो स्थान है ये अच्छे और बुरे दोनों तरीके के रिजल्ट दे सकता है. So what will happen if second house lord going into the first house? बताओ. जब लग्नेश कहीं पर जाता है तो वो उस स्थान को प्रभावित करता है. हाँ. Yes. और जब कोई और लग्न पर आता है तो वो लग्न को प्रभावित करता है. यानी अगर कोई भी लॉर्ड लग्न पर आके बैठेगा वो आपका बुद्धि को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. Right? Now imagine Guru and Shukra is sitting on your lagna. What will happen? So when second lord goes to the first house and into a strong position, the person will get his wealth from his own effort. Right. धन मेरी बुद्धि पर आकर बैठा कि नहीं बैठा? हाँ आ गया. कहाँ से आ रहा है? मैंने एक दिन बोला था कि सेकंड लॉर्ड जहां पर जाएगा वहां से धन आएगा. So when second lord is going to the lagna, I can say that the person will earn through his own intellect. Right? Then he said, if it is weak, there will be more expenses. क्यों? धन का लॉर्ड अपने से 12वां हो गया. वीक हो गया मतलब कि टेंटेड हो गया, कमजोर हो गया, नीच राशि में हो गया, अस्त राशि में हो गया, तो फिर उस पर खर्चा ज्यादा होगा. राइट. नाउ दूसरा स्थान जो है वो परिवार का स्थान है. सो दूसरे स्थान का लॉर्ड जब लग जाता है वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए फोकस रहता है. सेकंड लॉर्ड इज योर हाउस, इज a lord of your wealth. When second, generally if it is a Shubh Grah, people who have got second lord in the lagna, they are very rich people. दूसरी चीज, दूसरे नजरिए से हम देखें तो मेरे सर पर क्या बैठ गया? पैसा बैठ गया, सेविंग बैठ गई. Yes. सेकंड हाउस में बोलता हूँ कि बचा हुआ धन है ना, गेन तो नहीं है. Net Have you profit. seen any person, anybody of you is having second lord on the lagna? If it has no malefic association, second lord on the lagna, they will be very strong in saving. दूसरा धन बैठ गया दिमाग पर, पैसा खर्च नहीं होगा. ठीक है. एंड देन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन सेविंग. वो पैसे का ओरिएंटेशन जो है, धन कहां पर बैठा? बुद्धि में. बुद्धि काय में लग गई? पैसे में लग गई. पैसे का ओरिएंट, ये कौन सा धन है? दिस इज नॉट गेन, दिस इज नॉट 11th lord on the lagna, right? Right. 11th lord on the lagna, I want to earn a lot of money, they want to save a lot of money. So these are the real rich people. But this is a good combination because any planet which is other than 6th, 8th and 12th, if any planet is going into the kendra, any kind of kendra, this planet is going to manifest good result, right? Now उन्होंने लिखा, when the second lord has gone in the ascendant, the native will endowed with sun and wealth. ठीक है. Will be inimical to his family, lustful, hard-hearted, and will do others' job. If this planet is malefic, then the person will be very lustful. Because this malefic planet will look at the 7th house. And the second house is 8th from the 7th. And Yes. 8th house is a house of sex.
Yes. right? So it will create a lot of lust. And generally, who comes with second lord? Venus comes with second, right? Yes. वीनस ही तो आएगा. अब वीनस आकर आपका सर पे बैठ गया और उसने अपने ही घर सेवंथ हाउस को देखा, that will make you lustful or not? Yes. हमने क्या बोला? सेकंड हाउस को देखो कि गुरु और सूर्य शुक्र जा रहे हैं, यही बोला ना. हाँ. So Venus is coming on your head and looking at your seventh house, and this Venus is a little tainted. Then that can make you very lustful, right? Okay. Why he has said that that can make you very hard-hearted? If it is tainted a little bit, second lord in the lagna can make you hard-hearted. क्यों बनाएगा ये तो पूछ रहा हूँ. पैसे में मोह फंस जाएगा ना उसका, वीनस से वो मोह उसको मिलेगा सेकंड हाउस से, उसके से दिमाग पे चढ़ जाएगा. फोर्थ से 10th है भैया, ऐसा कुछ तो काम में ज्यादा मतलब ऐसा फोकस. फोर्थ से 10th कैसे होगा? दूसरा स्थान अच्छा हाँ, फोर्थ से 10th. आपका प्रारंभिक संस्कार है. If this lord is tainted, your initial संस्कार में पंगा आ गया. Right. हार्ड हार्टेड का मतलब क्या होता है कि आप मतलब निर्दयी हो जाओ, राइट? निर्दयी पता है आप कब हो सकते हो? निर्दयी समझते हो आप लोग क्या होता है? हाँ भैया. निर्दयी मतलब जिसके अंदर दिल नहीं हो और दया नहीं हो, राइट? यही मतलब हुआ. Right. You can become hard hearted only when you have seen something like this happening in your life. सही है गलत है बोलो? हाँ. हाँ भैया. People who become hard hearted or nirdayi, they have seen something of this sort happening in their life, in their families. तभी तो बनेगा. Correct. ग्रह तो भगवान बैठाता है, लेकिन हमको हर ग्रह से संबंधित रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी देता है ना. Right. So when Jupiter and Venus both are weak, रूप किसका आ रहा है? गुरु और शुक्र का आ रहा है ना. हाँ. दोनों पर ही अगर टेंटेड आ गया तो ये, और आपका बुद्धि, दोनों बुद्धि के कारक है गुरु और शुक्र, राइट? गुरु है ये आपके. ये दोनों ही अगर इसने पीड़ित कर दिए तो आपका बुद्धि में कठोरता आएगी कि नहीं आएगी? Right? And obviously, if second house is your family, वो आपका लग्न मतलब फोकस पे आ गया फैमिली. अगर ये बेनिफिक है, आई मीन इस पर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऑब्वियसली आप अपने परिवार के प्यारे होगे, परिवार आपका प्यारा होगा, आप हर चीज परिवार के लिए करोगे. बट अगर सेकंड लॉर्ड लग्न पर उठकर आया तो आप अपने, और उसको मेलेफिक इन्फ्लुएंस आया, तो आप अपने परिवार का विद्रोह करोगे कि नहीं करोगे? एक बच्चा जो मम्मी पापा से रोज लड़ता है, उसके दिमाग में भी तो यही है कि मेरे माँ बाप मेरे संग गलत कर रहे हैं. और एक मम्मी पापा से रोज प्यार करता है, उसके दिमाग में ये है कि पापा मम्मी अच्छा कर रहे हैं. दोनों केस के अंदर फोकस काय पर है? फैमिली पर. एक पास नेगेटिव फोकस है, एक पे पॉजिटिव फोकस. आर यू एबल टू आइडेंटिफाई कि मैं क्या कर रहा हूँ? Yes. अगर वो अकेला सेकंड लॉर्ड अगर शनि भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक उस पर कोई दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं हो. ध्यान रखना ना. दूसरा इन्फ्लुएंस कोई आ जाएगा और वो लग्न पर बैठ गया, दैट मींस फिर हम उस प्लेनेट के हिसाब से उसका अंतर निकाल लेंगे. मान लो सेकंड लॉर्ड शनि है, वो लग्न पर बैठा मंगल के साथ, दैट मींस आप अपने परिवार का विद्रोह करोगे, बिकॉज आपने अपने परिवार में वायलेंस देखा है. मंगल वायलेंस दिखाएगा, राइट? अगर यही शनि राहु के साथ बैठा तो आप अपने परिवार का विरोध करोगे, क्योंकि आपने अपने परिवार में धोखे होते देखे हैं लोगों. समझ में आ रही बात? Yes. सो प्लैनेट के हिसाब से हम उसका अंदर का ग्रह का प्रिडिक्शन निकाल लेंगे. बट मेजरली लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस, इफ इट इज इन द लग्न विदाउट एनी मेलेफिक इन्फ्लुएंस, सुपर प्लेसमेंट, सुपर, राइट? The person will be super dhani, very good into family matters, focus will be on the family, wealthy,
आपका जो भी पत्नी का सुख सब कुछ एवरीथिंग, if it is into malefic influence then there is a problem in terms of wealth creation, पैसा रोकेगा नहीं, खर्चा हो जाएगा, दिमाग के अंदर पैसा चढ़ जाएगा, पैसे के लिए गलत काम कर लोगे, परिवार का आप विरोध करोगे क्योंकि परिवार से तो ऑलरेडी 12th भी गया है वो और malefic influence भी आ गया, देन लस्टफुल भी हो जाओगे। लस्टफुल का मतलब क्या हुआ, एक नॉर्मल सेक्स डिजायर सब में होती है, दैट इज वेरी नेचुरल। लस्टफुल इज समथिंग व्हिच इज इंक्रीज्ड, राइट? Yes, extremes पे चली तो गई। मे बी एक्सट्रीम्स और इंक्रीज्ड, राइट? हम्म। तो ऐसा रिजल्ट आएगा इसका।